खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली में मुलाजिमीन के वजीफे पर सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक बिल मंजूर। कांग्रेस के रुकने असेंबली का अपनी बेटी के साथ मिलकर अनोखा एहतजाज। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून ने कर ली खुदकुशी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली में सरकारी मुलाजिमीन की सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक बिल को मुकन्ना तौर पर मंजूरी दे दी गई। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज असेंबली में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन के वजीफे पर सुबुकदोशी की हद उम्र को 58 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दिया है। अब तक मुलाजिमीन के वजीफे पर सुबुकदोशी की हद उम्र 58 साल थी, जिसमें इजाफा कर दिया गया है। I request the Minister of Finance to move the motion for taking into consideration of the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2021. Adhyaksha, I beg to move for taking into consideration of the Telangana Public Employment Regulation of Age of Superannuation Amendment Bill 2021. Motion moved. I request the Minister for Finance to explain the aims and objects and salient features of the bill. అధ్యక్ష, ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు 58 సంవత్సరాలుగా ఉంది అధ్యక్ష. 4వ తరగతి ఉద్యోగస్తులకు అది 60 సంవత్సరాలుగా, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలో బోధనా సిబ్బంది విషయంలో 65 సంవత్సరాలుగా ఇప్పటి వరకు ఉంది అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో అధ్యక్ష. అయితే న్యాయ సిబ్బందికి 60 సంవత్సరాలుగా ఉంది అధ్యక్ష. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మరి 60-62 సంవత్సరాలు పదవీ విరమణ వయస్సు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మన దేశంలో అమల్లో ఉంది అధ్యక్ష. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఉద్యోగస్తులకు ఇచ్చినటువంటి హామీ మేరకు ఈ 61 సంవత్సరాలకు మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వయో పరిమితిని పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క బిల్లును సభ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా ఈ లైఫ్ స్పాన్ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మరి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ రావడము, పౌష్టికాహారం తీసుకోవడము, మరి పెరుగుతున్నటువంటి జీవితకాల పెరుగుదల వలన దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఉండేటువంటి మెరుగుదలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి యొక్క వయసు పెంపుదల చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తులు ఎంత సీనియర్ అవుతా ఉంటే వారి యొక్క ఎక్స్పర్టైజం కూడా బాగా పెరుగుతుంది, వారి అనుభవాన్ని కూడా మరి ఉపయోగించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. ఈ యొక్క వేతన సవరణ కమిషన్ కూడా ఈ విషయాన్ని నివేదించడం జరిగింది అధ్యక్ష. వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలను కూడా ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో సంప్రదింపులు జరిపి వారి అందరి సలహాలను కూడా తీసుకొని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును 61 సంవత్సరాలకు పెంచుటకు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈ పెంపుదల వల్ల కూడా ఎలాంటి ఖాళీల భర్తీల విషయంలో కూడా ఎలాంటి ప్రభావం ఉండకుండా మరి ఉద్యోగస్తులకు వెంటనే ప్రమోషన్లు ఇస్తూ కింది స్థాయి ఉద్యోగులను కూడా వెంటనే ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేసేటువంటి ప్రక్రియ చేపట్టాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అధ్యక్ష. అంటే వేకెన్సీస్ను కూడా ఒకవైపు ఫిలప్ చేస్తూనే సీనియర్ ఉద్యోగులను మరి ప్రభుత్వం వారి యొక్క సేవల్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి మరి నిర్ణయం తీసుకుంది అధ్యక్ష. ఇందుకు అనుగుణంగానే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే ప్రకటించున్నారు. రాష్ట్రంలో ఒక 50,000 ఖాళీలు వెంటనే ఉద్యోగాల ఖాళీల భర్తీ ప్రక్రియను కూడా ప్రారంభించాలని చెప్పి ఇప్పటికే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు. త్వరలోనే ఈ 50,000 ఉద్యోగాల నియామకానికి సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్స్ను కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మరి ఈ యొక్క బిల్లును గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాలని మీ ద్వారా అప్పీల్ చేస్తున్నాను. Discussion. तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी अपनी बेटी के साथ मिलकर शहर हैदराबाद के लोअर टैंक बोर्ड के करीब वाक़ अंबेडकर के मुजस्समे के करीब अनोखा एहतजाज किया। वो संगारेड्डी असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए ग्रेनेड देने के साथ साथ गरीबों के लिए प्लाट्स देने का मुतालबा किया। बादशाह वो असेंबली के लिए पैदल रवाना हो गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके हल्के के मसाइल उठाने का मौका उनको असेंबली में नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए तजावीज़ भेजी गई, ताहम हुकूमत ने यह कॉलेज सिद्दीपेट के लिए अलाट कर दिया। మెడికల్ కాలేజ్ కావాలని ఒక డిమాండ్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్నది. గతంలో ఆ యొక్క డిగ్రీ కాలేజ్ మెడికల్ కాలేజు ప్రపోజల్ 2000 అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మరి సంగారెడ్డికి రావాల్సిన ఒక మెడికల్ కాలేజ్ సిద్దిపేట తరలించిన తర్వాత మరి 4 ఏళ్ళు 2014 నుంచి ఒక 4 ఏళ్ళు పోరాటం చేయడం జరిగింది. 2018లో ఎన్నికల ప్రచారంలో వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా మరి సంగారెడ్డి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పరంగా వచ్చినప్పుడు కూడా సంగారెడ్డిలో తప్పకుండా అవసరము, జిల్లా హెడ్ క్వార్టరు, నేషనల్ హైవే మరి బాంబే హైవే ఉంది. 10 నియోజకవర్గాల ప్రజలు సంగారెడ్డితో పాటు మరి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి చాలా మంది పేదవారు ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తారు, ఇక్కడ మెడికల్ కాలేజ్ అవసరము అని వారు కూడా ప్రామిస్ చేసిర్రు. కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులుగా నేను కూడా అనేక పలుమార్లు నేను మొదటి అసెంబ్లీ సమావేశంలో ప్రశ్న అడిగినప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి తప్పకుండా నేను కూడా మాట ఇచ్చినా చేస్తా అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా మరి మంజూరుకు సంబంధించిన యొక్క ప్రయత్నాలు ఎక్కడ కూడా ఒక శాంక్షన్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా జరగలేదు. అదే కాకుండా మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్తో పాటు 1000 కోట్ల నిధులు కూడా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ముందుగానే అవసరం కాబట్టి 1000 కోట్లు మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్ ఇవ్వమని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి కోరడం జరిగింది. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా మెడికల్ కాలేజీ లేదు. మరి ఆ 1000 కోట్ల నిధులు కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా మంజూరు చేయకపోవడము మరి స్వయంగా అసెంబ్లీ సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినప్పటికీ ఇప్పటికీ కాలేదనే దాని మీదనే ఇదొక కార్యక్రమము. మరి అదే కాకుండా గత 2 సంవత్సరాలుగా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో దాదాపు మరి గతంలో నేను శాసనసభ్యుగా ఉన్నప్పుడు 8000 మందికి ఇళ్ల స్థలాలు పట్టా సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చినాను. నేను ఓడిపోయిన తర్వాత ఆ కబ్జా నుంచి స్థానిక అధికారులు తరలించారు. ఆ 8000 మందికి పట్టా తీసుకున్న పేదవారికి ఇళ్ల జాగాలకు కేటాయించాలని, అట్లాగే ఇంకా 40,000 మంది పేదవారు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఒక్కొక్క కుటుంబంలో 5 మంది పెళ్లికి వచ్చినటువంటి పెళ్లిలైనటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఒకే కుటుంబంలో 5 ఫ్యామిలీలు 6 ఫ్యామిలీలు ఉంటున్నారు కాబట్టి ప్రతి కుటుంబానికి 5-6 ప్లాట్లు చొప్పున నియోజకవర్గంలో 40,000 మందికి ఇళ్ల పట్టా సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వాలని, రైతులు అసైన్ ల్యాండ్ అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. 5-6 ప్లాట్లు చొప్పున నియోజకవర్గంలో 40,000 మందికి ఇళ్ల పట్టా సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వాలని, రైతులు అసైన్ ల్యాండ్ అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని ఇది కూడా పలుమార్లు నేను శాసనసభ్యునిగా ఎన్నికైన కాడ నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఎప్పుడు కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేయడం జరుగుతున్నది. దాంతోపాటు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసము మరి 4 మండలాలు 2 మున్సిపాలిటీ तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इमाम व मौज़नीन की 4 माह की तनख्वाहें उनके अकाउंट में रवाना कर दी गई है और मज़ीद 2 माह की तनख्वाहें अनकरीब रवाना कर देने का भी तयक़ुन दिया। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने क़ब्रस्तानों और मस्जिदों के मुतवल्लियों से अपील की कि शब बारात के मौके पर क़ब्रस्तानों और मस्जिदों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और कहा कि अगर कमेटी के पास सफाई के इंतज़ामात की माली सहूलत ना हो तो वक्फ बोर्ड से कमेटी को रुजू होने की ख्वाहिश की है। गवर्नमेंट से गारंटी रेट जो है 23 करोड़ कुछ समथिंग लैक्स आए हैं, तो जिसमें जो है ना 20 करोड़ 17,70,000 जो है ना इमाम मौजूदों को हदिया दिया गया है केसीआर साहब की तरफ से, जो वक्फ बोर्ड के थ्रू जाता, और 4 महीने का हदिया दिया गया। अभी 2 महीने का ड्यू है,
तो 2 महीने का भी जो है ना इंशाल्लाह कुछ टाइम में वो भी डाल देंगे, 2 महीने का भी। रमज़ान तक अल्लाह चाहे तो कोशिश करके वो भी जो है हम लोग देने का काम केसीआर साहब की तरफ से वो भी हदिया पहुंच जाएगा इमाम मौजनों को। फिलहाल तो 4 महीने का कल की डेट में चलेगा है, और अल्लाह के करम से वो जो 2 महीने का बैलेंस है इमाम मौजनों का वो भी चले जाएगा। और दूसरी बात ये है कि शबे बारात आ रही है, 14 तारीख को शबे बारात है, इतवार का दिन है। मेरी मुतवल्लियों से और खबरस्तान कमेटियों से और मस्जिद कमेटियों से सबसे गुजारिश है, दरगाह कमेटियों से, जो भी हमारे मुतवल्ली से कमेटी के सदर सेक्रेटरी वगैरह जो भी है ग्रेवयार्ड्स के, आप लोग मेहरबानी करके साफ सफाई का इंतजाम रखिए, क्योंकि लोग फातिहा देने के लिए, फातिहा खानी करने के लिए कब्रस्तान को, दरगाह शरीफ को, हर दरगाह में, डिस्ट्रिक्टों में, हर जगह आते तो झाड़ियाँ वगैरह रहते। आप लोग इमीडिएट कल की डेट में हो सका तो आज की डेट में भी आप लोग जो है ना साफ सफाई का इंतजाम करिए, क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हम बल्दिया को भी लेटर लिखे हैं, और पुलिस, बल्दिया और कलेक्टर को भी, कमिश्नर GHMC, हम लोग सबको, हम लोग हमारे तरफ से अपील है कि आप लोग थोड़ा सीरियस लेके जो है ना शबे बारात के दिन करंट भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रात है। शबे बारात की बहुत बड़ी फजीलियत है, और आप लोगों से भी, मेरी ऑफिसरों से भी गुजारिश है कि लाइट और वाटर और जो है ना हमारे मुतवल्ली और हमारे कमेटियों के सदर से मेरी अपील है कि आप लोग साफ सफाई का इंतजाम रखिए। ऐसा तो लगता है, मगर हमारा भी फर्ज है कि आप लोगों को एक बार अपील करने का। आप लोगों से अपील है मेरी कि आप लोग अच्छे से अच्छा नीट रखिए। अगर कोई साफ सफाई नहीं करा सकते ग्रेवयार्ड्स में, तो हमारे को वक्फ बोर्ड में आके इमीडिएट हमको बोलिए, हम यहाँ से हमारे टास्क फोर्स को भिजा के, हमारे वक्फ बोर्ड के पैसों से जो है ना, आपके कमेटी में पैसे नहीं है वगैरह कुछ है तो हम यहाँ से कराएंगे इमीडिएट। इसमें लेटर देने की भी जरूरत नहीं है, खाली आप बोलिए, हमारी टास्क फोर्स टीम आती, लेबर को लगा के हम लोग इमीडिएट साफ सफाई, झाड़ियाँ वगैरह निकालने का काम हम लोग करेंगे। और क्योंकि जो भी ज़ायरीन आते हैं फातिहा दुरूद वगैरह पढ़ने के लिए, तो उनके लिए साफ सफाई चाहिए वहाँ, क्योंकि झाड़ियाँ वगैरह रहने से जो है कोई आने जाने के लिए तकलीफ होती। तो कब्रस्तान का खुसूसन ख्याल करिए, अभी नहीं हमेशा जो है ना काम कराइए आप लोग। कब्रस्तान ग्रेवयार्ड को साफ रखिए, ऊपर नीटनेस मेंटेन करिए। अगर आप लोग नहीं कर सकते तो वक्फ बोर्ड से बोलिए, वक्फ बोर्ड से आके हम लोग जो है ना कराने के लिए तैयार है काम। हम वाटर वर्क्स वालों को भी बोलेंगे कि वजू के लिए जो ना पानी और जो ना कोई चीज की कमी नहीं होना। लाइट भी जो है ना इंशाल्लाह लाइट भी बंद नहीं हो रही। वैसे तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है हमारे को, मस्जिदों को, हर चीज को, ग्रेवयार्ड को, जहाँ जहाँ भी इलेक्ट्रिक पोल है वहां पर लाइटों का भी इंतजाम है। अल्लाह चाहे तो कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग जो है ना एक हफ्ते में 71 रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें हम लोग। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 अशखास में हुए मामूली झगड़े में बालराज ने रमेश नामी शख्स पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें रमेश की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इत्तला के साथ ही राजेंद्र नगर पुलिस ओहदेदारों ने मुकाम वाक़या पहुंचकर बालराज को हिरासत में ले लिया और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ఈరోజు మధ్యాహ్నము 1 గంట ప్రాంతంలో రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లోని NIRD కమాండ్ దగ్గర ఒక అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు జరిగింది. దీంట్లో అక్యూజ్డ్ వచ్చేసి మైల్కోల్ బాలరాజ్ అనే అతను, ఇంజూర్డ్ మైల్కోల్ రమేష్, ఇద్దరు కూడా డిస్టెంట్ రిలేటివ్సే. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఆవుల గ్రేజింగ్ అంటే గడ్డి మేసే దగ్గర గొడవ వచ్చింది సాయంత్రం నుంచి. ఆ విషయంలో మాట్లాడదామని చెప్పి ఇక్కడ పొద్దున్న ఇద్దరు కలిసిండ్రు. మధ్యాహ్నం పూట కలిసి మాట్లాడే లోపల మాటలు పెరిగి బాలరాజ్ అనేటతను అతని స్కూటర్లో ఉన్నటువంటి కొడవలి తీసుకొచ్చేసి ఇతని పైన అటాక్ చేయడం జరిగింది. ఇతని కాస్త ఇక్కడ ఇంజూర్ అయింది, ఆయన చేతిలో కూడా ఇంజూర్ అయింది. ఇక్కడ నరేష్ అండ్ నారాయణ అని ఇద్దరు చాలా సాహసోపేతంగా ఆ ఇన్సిడెంట్ని ఆపగలిగారు. లేకున్నట్టయితే ఇంకా గ్రేవ్గా జరిగేది. కాబట్టి ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ నరేష్ అండ్ నారాయణ. ఎందుకంటే ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు చాలామంది సెల్ ఫోన్లో తీసుకున్నారు తప్ప
ఎవరు కూడా ఆ ఇన్సిడెంట్ ఆపాలని చూడడం లేదు. ఇది చాలా రాక్షసమైనటువంటి కృత్యం. దీన్ని ఆపినందుకు వాళ్ళిద్దరిని అభినందిస్తున్నా. అదేవిధంగా మేము ఈ విషయం లోపల స్టన్ యాక్షన్ తీసుకుంటాం. బాలరాజు మీద డిమాండ్ చేస్తాం. అండ్ అతని మీద వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ రౌడీ షీట్ ఆల్సో. అవకాశం ఉన్న పీడీ యాక్ట్ కూడా పెట్టేసి ఇటువంటి ఎలిమెంట్స్ సొసైటీలో ఉంటుంది అవకాశం లేకుండా చూడాల్సినటువంటి బాధ్యత పోలీసులకు ఉంది. అదేవిధంగా సమాజంలో ఉన్నటువంటి బాధ్యత వాళ్ళందరికీ ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇచ్చినట్టుగా మేము తప్పనిసరి యాక్షన్ చేస్తాం. బాలరాజు మీద 2013లో కేసెస్ ఉన్నాయని తెలిసింది. అంతకుముందు కూడా ఒక డబుల్ మర్డర్ కేసు, అది ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి చంపిందని కేసు ఉంది. అది అక్కడ ఉందట ఇంతకుముందు. అది కూడా రికార్డ్ తీసి చూస్తాము. ఇవన్నిటిని చేసి రికార్డ్ బిల్డప్ చేసి అతని మీద షీట్ ఓపెన్ చేస్తాం. बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मरहुमा के घर वालों ने बताया कि फांसी लेने की वजह ससुराल वालों की जानिब से हरासानी है। मीडिया से बात करते हुए लड़की के सरपरस्तों ने पुलिस ओहदेदारों से सख्त कार्रवाई की अपील की। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद फराज की ये रिपोर्ट। मेरी बच्ची का नाम शबाना है। वो लोग मेराज पुकार रहे। वो लोग बच्ची को फांसी डालने के बाद मेरे घर को फ़ोन करे 7 बजे, तुम्हारी बच्ची को दवाखाने में डाले देखो बोल को। डालने के बाद मेरे बच्चों को फ़ोन करके बोली वहाँ दवाखाने में डाले करते। हम लोग आए तो कोई भी नहीं है यहाँ दवाखाने में। भाई मेरे बच्चे है दवाखाने में। हाँ, बच्ची को मारने के बाद दवाखाने में ला के डाले। आप लोग क्या बोल के बोले, कैसा करे, कैसा हो गया डेथ बोल के बोले? फांसी डालने के मारी बोल के बोले। कब मालूम हुआ आपको? 7 साढ़े 7 को मालूम हुआ। ये हुआ कब? ये 5 साढ़े 5 के करीब हुआ करती। 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद मालूम हुआ बोले हॉस्पिटल वाले। 2 घंटे के बाद बोले तुम आपको बोल के बोले। मेरे को 7 बजे फ़ोन करे लोग। पुलिस वाले को एक्शन नहीं ले रहे। दवाखाने में डाले। एक मिनट पुश करो। जी मेरी बच्ची को देखो 7 बजे मेरे को फ़ोन करे। मैं घर के काम को गई थी, मैं बर्तन धोने आई तो फ़ोन आया तो उठाई, तुम्हारी बच्ची फांसी डाले तुम्हारी देखो मैं दवाखाने में डाले देखो अवेजी अस्पताल में। मेरे बच्चे काम पे गए थे। मैं बच्चों को फ़ोन करके बोले आपको देखे दवा कोई भी नहीं है मेरे को, मरी भी है। कितने साल हो रहा शादी हो गया? कितने साल हो रहा? 14 साल हो रहा बच्ची की मेरी शादी हो गई। उसका हमारा पीको माता था। उसका हमारा बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा है। 14 साल हो रहा मेरी बच्ची की शादी हुई तो भी अभी तक किरकिरी। परसों बच्ची आई थी तो मेरी मैं अम्मी मैं नहीं जाती बोल कर रख ली थी। मैं नहीं ये आखिरी बार है अब मेरे साथ आती बोल को लगा आपको बुला लेते तो मेरी बच्ची बुला ले जाते ऐसा करे। अब क्या बोले बच्ची फांसी डाली बोले मेरे। पुलिस वाले आए थे? हाँ नहीं है हमारे घर। क्या एक्शन नहीं लिए कुछ भी? वो लगा बच्ची को मारे भी। वो लगा हमारे को फ़ोन करे अम्मा को करे। मैं अम्मा हूँ मैं बच्ची की फांसी डाल को मेरे को फ़ोन करे तुम्हारी बच्ची मरी देखो दवाखाने में छोड़ रहे देखो बोल को बोले तो ना करे तो फोन उठा रहे नहीं, बात कर रहे नहीं। अब फोन कर रहे तो नहीं उठा रहे। इंसाफ होना देखो ना इंसाफी नहीं है। लोगों को मारे। फर्स्ट आपका नाम बोल के स्टार्ट करो। कौन है आपकी तरफ? मैं नाम बोलूँगा बच्ची का भाई हूँ। वट्टेपल्ली के इलाके में वाक़ एक कब्रस्तान की वायरल वीडियो में जहां कब्रस्तान की ज़मीन के मामले में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ पेश की जा रही थी, इसके बाद कब्रस्तान की कमेटी से ज़िम्मेदारों ने आज वजाहत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कब्रस्तान की ज़मीन का वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये शख्सी तौर पर ख़रीदी हुई ज़मीन है जो अब से 40 साल कबल ली गई है। मस्जिद उस्मानिया कब्रस्तान वगैरह का जो है सरपरस्त आला हूँ कमेटी का, और सरपरस्त जो है ना ये बाजू बैठे हुए मेरे अब्दुर्रहीम साहब। और कल हम लोग जो सो कब्रस्तान के आमदनी के लिए मस्जिद की वहाँ पे एक साहब को किराए से ज़मीन दिए कब्रस्तान में, तो वो जो है 3 दिन से काम चल रहा था। अब वो महल्ले के बदमाशों को नागवार गुजरा हो वहाँ पे बैठ के जुआ खेलते पीना गांजा वांजा मारते रहते थे। अब उन लोगों को तकलीफ़ हो गई तो वो लोग क्या करे, वर्गला के पूरे महल्ले वालों को जमा करे, कल जमा करके जो है ना बयानबाजी करे, सोशल मीडिया ये वो क्या क्या तमाशे है पूरे करे। तो उस वास्ते जो सब आज सफाई के लिए हम लोग आपको ये जो पी रहे खा रहे जुआ खेल रहे बोल रहे आप, तो इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करेगा इससे पहले आप कभी? पुलिस रात के 12-11 के बाद आके बैठते सन्नाटा होने के बाद। अब वो बैठते जब तक काम है उन लोगों का कर लेके उसके बाद निकल के चले जाते। तो आप लोगों की तरफ से पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई? नहीं कोई कई वक्त बोले भाई, मगर वो कोई एक्शन नहीं है उस पर।
पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। इधर से आए तो उधर से भाग जाते, उधर से आए तो इधर से भाग जाते, ऐसा है वो। साहब ये मेन मुद्दा क्या है, कब्रिस्तान का जो मुद्दा है, पब्लिक जो आके इतराज़ करी जो कारखाना बन रहा बोल के जी, उसके आप कमेटी के क्या है? आप मैं जो है ना कमेटी का सदर हूँ, सदर है पूरी आप। कमेटी का। तो आपके ऊपर एग्जाम लग रहा है, आप कारखाने को दे रहे हैं परमिशन पैसे लेके बोल के, जी। बच्चे वाले इतराज़ कर रहे जी। हैं, आप उसमें गाली गलौज भी कर रहे हैं, उसमें जी। क्या कहना है आपका? नहीं, वो गाली गलौज का जो मसला है ना, वो इधर वहाँ देखिए। पे उन लोगों को समझाए, जितना समझाना था समझाए। बोले तो वो एक अब 100-150 आदमी जमा है, अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से बोल रहा, तो समझाए तो नहीं समझे तो जब आखिरी में एक गाली दिया मैं, और नहीं दिया बोल के इनकार नहीं कर रहा हूँ, एक बार गाली दिया उसके बाद सबको हटा दिया। जो जीएचएमसी उठाई दीवार उठाई थी वो, तो आप किसकी परमिशन से वो दीवार तोड़ने लगे? सब जीएचएमसी उठाने लगे थे ना दीवार वो, हाँ, तो आप विदाउट इंटीमेशन, विदाउट जीएचएमसी की परमिशन के कैसा तोड़ने लगा सकते हो दीवार? नहीं वो काम वाला खुद तोड़ा, हम नहीं तोड़ा है। आप सदर है ना साहब खबरस्तान के, तो आपको ये मालूम था कि जीएचएमसी की दीवार टूट रही है, तो आपको कुछ परमिशन या वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट से कुछ आप लेटर वगैरह लेके आएगा? एक गेट लगाने के वास्ते वो दीवार तोड़े, अब फिर वहाँ गेट बैठ गई तो खत्म हो जाता मसला हो। तो ये एक्चुअली वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ना, प्राइवेट लैंड है? वक्फ बोर्ड नहीं, खरीदी हुई जमीन है। तो किसकी है वो, या ऑनर है क्या? ओनर मर गए, अब हम लोग उनके मुतालिक हैं। तो कुछ पेपर डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सब है, वो सब है, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे हैं हमारे पास। आप नोटिफाई है साहब आपका खबरस्तान वक्फ बोर्ड में? नहीं, वक्फ बोर्ड में नोटिफाई नहीं है। और एक बात आप जो बोले हैं कल, कब्रिस्तान आप क्लोज कर देता हूँ बोल के बोले, अच्छा आप बोले कल ये आपकी अच्छा। जबान ही, अच्छा। कब्रिस्तान में बंकर देता हूँ, कौन रोक सकता है, रोको बोल के। आप क्या बात से बोल रहे हो कब्रिस्तान रोकते हो? बस्ती वाले तकसीम के लिए कब्रिस्तान है ना? हाँ भाई, तकफीन के लिए है, हम इनकार नहीं कर रहे। अब एक एक जना एक एक सवाल कर रहा, तो मैं बोला कल मैं अगर रोक दिया तो क्या कर लेते तुम इतना लोग? बड़ा अख्तियार आपको कौन दिया जो कब्रिस्तान आप मुझसे बोल के बोल रहे हो? अरे भाई हम खरीदे हुए, कौन दिए क्या बात? ज़मीन हम खरीदे हैं, खाली वो बल्दिया की जानिब से, वो भी दुनिया की पैरवी करके एमपी साहब कने जाके बोले तो वो बाउंड्री बनी। कितने साल हुआ खरीद के? जमाना हो गया, 40 साल के ऊपर हो गया। लेकिन साहब आप खबरस्तान खरीदे हुए बोल रहे, लेकिन जब खबरस्तान की जगह के लिए जाना होता तो खबरस्तान आपसे में परमिशन खरीदे ले, हम, जमीन खरीदे खबरस्तान के वही लिए। साहब जो ज़मीन खरीदे ना आप, लेकिन जो खबर की जगह के लिए जाना पड़ता है, तो या क्या लोगों का कहना है कि किसी और के पास जाके खबर की जगह अलॉटमेंट करानी पड़ती है, आपके ज़रिए से खबर की जगह नहीं मिलती, ऐसा है कि लोगों का कहना है। ये सदर है, ये जो साहब है अब्दुल रहीम साहब, ये सदर है, इन्हों चिट्ठियाँ इशू करते, तो वो चिट्ठी इशू करके ला के खबर खोदने वाले को दिए, तो उन्हें जो है ना खबर का काम करता, समझ रहे हैं आप जी? सिस्टमेटिक काम है, एक ही वन मैन शो वाला काम नहीं है। इनके ने जाना है, इन्होंने चिट्ठी दी है, इजाज़त पूरा तहकीक करके दिए, तो जब जो है ना खबर खुदती। ये आप जो कल काम हुआ दीवार तोड़ने का, ये पूरे कमेटी वालों के में था, मालूम में था पूरे जनों को ये हाँ, ऐसा होने वाला है बोल के? इजाज़त दिए ना भाई, उनको किराए पे दिए तो अब लाजमी है, काम करने वाला जितनी ज़रूरत है उतना लेंगे ना। लेकिन बस्ती के लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो है खबरस्तान से काफ़ी आमदनी हो रही है, क्योंकि जो है डब्बे वगैरह भी एक एक डब्बे का 600-700 रुपये किराया है, तो वो भी आमदनी है, तो वो उस जगह पहले और खबरस्तान में कम है, तो उसको जगह बर्खास्त करके जो है कारखाने को देने की क्या ज़रूरत ऐसा पड़ गई बोल के सब बस्ती वालों बोल रहे हैं। आप लोग अगर चल के देखते बोलो तो चल के बताता हूँ अभी आपको, दफन भी नहीं हो सकते, जगह है ही नहीं वहाँ खबरा बनाने की। खबरा बनाने के लिए साफ जगह होना और जो है 4 फीट डेप होना, तो जब जो है ना खबर बनती। अब पत्थर जहाँ है, पत्थर पहाड़ में जो तो खबर कैसा बनती है, आप ही बोलो। तो वक्फ बोर्ड के जरिए वो पत्थर फोड़ा भी सकते हैं ना सब? नहीं फोड़ रहे भाई, कोई भी सोप कर लेके देख लिए हम। छोटा मोटा अगर 1-5 लाख का काम रहा तो हम खुद करा लेते। MIM वालों के पास जाके वहाँ उनको भी बोले तो ठीक है करेंगे बोल रहे, करा रहे कोई भी नहीं। वक्फ बोर्ड में दिए एप्लीकेशन? वक्फ बोर्ड में दिए हैं एप्लीकेशन अभी पत्थर फोड़ने के लिए? नहीं वक्फ बोर्ड में नहीं दिए, वो लोग कर लेते, बोले काम तो हम बोले ठीक है बोल के ला के सर्वे करा के जो सब बताया तो करेंगे बोले, मगर बहुत बड़ा काम है वो। देखिए आप लोग गए थे उधर? जी जी नहीं गए? क्या गए देख लीजिए। देखे ना पत्थर कैसा है, वो पत्थर में अब खबर बनती, नाकारा पड़ी हुई है जगह बोल के, उन्हें आया तो दिए एक जरिया बनता बोल के। पूरी गंदगी फैल रही है उधर। आवाम का कहना है बस्ती का एक बार जाके सर्वे भी कर सकते हैं, कंप्लेंट दे रहे बोल के बोल रहे हो लोग। फूलबाग में वाक़ एक घर में चोरी की वारदात पेश आई, जहां से नकद रकम 50,000 रुपये और 5 तोले सोना चोरी किया गया। इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस ने पहुंचकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया और मीडिया से बात करते हुए मुतासरा शख्स ने इलाके के लोगों पर शक का इजहार किया और पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्ताफ़ हुसैनी, पुलिस हेडक्वार्टर्स फूलबाग से।
ये हमारे मामा का घर है। यहाँ पे 12:30 बजे से रात में 10:30 के बीच में चोरी हुई और घर में 50,000 रुपये कैश, 5 तोले सोना चोरी हुआ। पुलिस वाले आए, चेक कर रहे, सब फॉरेंसिक लैब वाले भी आके चेक कर रहे। तो ये चोरी हुई बोल के इन्फॉर्मेशन कैसा आई आपको? जो घर में हमारे मामा के साले साहब रहते थे उन्होंने कॉल करके बोले ऐसा हुआ, तो इमीडिएट जब भी आया मैं आके। तो घर में कोई नहीं रहता यहाँ पर? नहीं, घर में कोई भी नहीं रहते, एक ही जने रहते, खाली मामा के साले साहब है उन्होंने रहते। कॉल करे तो मैं आया, आके चेक करा, पुलिस वालों को कॉल करे। तो किसी के ऊपर शक है आपको? शक बस्ती वाले, बस्ती में चेक करना, बस्ती में क्या है क्या नहीं चेक करके मालूम करना। कोई नया आदमी तो कोई भी करा नहीं, बस्ती में कौन है चेक करके, पुलिस वालों का काम है चेक करके जल्द से जल्द हमारे क्या है हमारी रिकवरी करके देना बोल के है बस। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना असेंबली में मुलाजिमीन के वजीफे पर सुबुकदोशी की हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक बिल मंजूर। कांग्रेस के रुकने असेंबली का अपनी बेटी के साथ मिलकर अनोखा एहतजाज। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक खातून ने कर ली खुदकुशी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं केएमआर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। केएमआर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476।
रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।